السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیو، آج پھر سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں بڑا ہی خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ ویسٹ بنگال میں سرکار بدل گئی ہے، حکومت بدل گئی ہے۔ نئے چیف منسٹر شوویندو ادھیکاری نے اپنے عہدے کا حلف بھی لے لیا ہے، لیکن ابھی تک ویسٹ بنگال میں وائلنس جاری ہے، تشدد جاری ہے، لگاتار غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ پولیس اور فورس غنڈہ گردی کو روکنے میں ناکام ہے، حالات پر قابو نہیں پایا گیا ہے۔ لگاتار خبریں سامنے آ رہی ہے کہ کہیں دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، کہیں گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اور جب مجھ جیسے جرنلسٹ ویسٹ بنگال کی سچائی کو سامنے لا رہے ہیں، حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں، پرشاسن پر، سرکار پر سوال قائم کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو چپ کرانے کے لیے نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا شکار خود مجھے بنا دیا گیا۔ میں نے ویسٹ بنگال کی سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا کہ کس طرح سی آر پی ایف کے جوانوں کی موجودگی میں پتھر بازی ہو رہی ہے۔ ویسٹ بنگال پولیس نے مجھے نوٹس بھیج دیا، کہا گیا ویڈیو ڈیلیٹ کیجئے۔ میں نے کہا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، جو کرنا ہے کرو۔ ویسٹ بنگال کی سچائی ہم سامنے لاتے رہیں گے۔ اب میں نے اپنے وکیلوں سے بات چیت کی ہے، ہمارے لائرز باضابطہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران ویسٹ بنگال میں لگاتار وائلنس اور تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں۔ پی سی آر کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے 8 ضلع میں ہونے والے واقعات کا جائزہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ تازہ ترین رپورٹ یہ آئی ہے کہ کھجوری بنگال کا جو علاقہ ہے، وہاں ایک ساتھ 60 دکانوں کو جلا دیا گیا ہے، نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کو کئی اخبار نے بھی شائع کیا ہے۔ مہوا موئترا نے بھی باضابطہ اس ویڈیو کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے۔ ابھیشیک بنرجی نے بھی اس ویڈیو کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا، اور ان تمام لوگوں نے ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہوئے یہی پوچھا کہ ویسٹ بنگال میں سرکار بدل گئی ہے، نئے چیف منسٹر نے حلف لے لیا ہے، اس کے باوجود لگاتار تشدد جاری ہے، وائلنس جاری ہے، دکانوں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں ان سب پر قابو کیوں نہیں پا رہی ہے سرکار؟ کس طرح بی جے پی کے ورکرز لگاتار غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اور بی جے پی کی طرف سے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے ورکرز کہیں غنڈہ گردی کر رہے ہیں، کہیں جشن منا رہے ہیں، سیلیبریشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بنگال کا کھجوری کا علاقہ بہت اہم مانا جاتا ہے، اور وہاں 60 دکانوں کو جلا دیا گیا، آگ لگا دیا گیا، اور اس صرف مسلمانوں کی دکانیں نہیں تھی، بلکہ ان میں کچھ دکانیں ہندوؤں کی تھی، کچھ مسلمانوں کی تھی۔ ہندو مسلمان مل کر کاروبار کر رہے تھے کھجوری میں، اور ایک ساتھ 60 دکانوں کو آگ لگا دینا بات سمجھ سے بالا تر ہے، اور ان سب کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ مہوا موئترا نے ٹویٹر ہینڈل پر اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 60 دکانوں کو آگ لگا دیا گیا، ہندو اور مسلمان دونوں کی دکانیں ہیں، 700 مرکزی فورس کے اہلکار یہاں پر تعینات ہے، اس کے باوجود کیسے یہاں پر ان سب دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا؟ اس طرح کے بہت سارے واقعات لگاتار پیش آ رہے ہیں۔ اے پی سی آر یعنی ایسوسیشن فار مسلم پروٹیکشن آف سول رائٹس نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ 4 مئی سے لے کر 7 مئی کے درمیان کتنے تشدد اور وائلنس کے واقعات پیش آئے، اور کس طرح سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں ہی وائلنس ہوا، تشدد ہوا، اور پولیس نے وائلنس کو روکنے میں اپنی کوئی بھومکا نہیں نبھائی۔ آرمی یعنی سی آر پی ایف وہاں موجود تھی، اس کے باوجود بھی حالات کو قابو میں نہیں کیا گیا۔ اے پی سی آر نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق وائلنس اور تشدد کے 8 ضلع میں 34 واقعات پیش آئے، اور جو ضلع سب سے اہم ہیں اس میں کوچ بہار ہے، نارتھ 24 پرگنہ ہے، ساؤتھ 24 پرگنہ ہے، ہاورہ ہے، باراسات ہے، کولکاتہ کا جو مین مرکزی علاقہ ہے، میٹروپولیٹن علاقہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مرشد آباد ہے، اس کے بعد مالدہ ہے، بیربھوم ہے، کچھ دوسرے علاقے ہیں جہاں لگاتار وائلنس ہوا، تشدد ہوا، اور 34 واقعات سامنے آئے جس میں کہیں دکانوں کو لگایا گیا، کہیں بلڈوزر کے ذریعے کسی دکان کو توڑا گیا، کہیں کسی مسجد کے سامنے جا کر جے شری رام کے نعرے لگائے گئے، کہیں کسی مسجد پر جھنڈا لگایا گیا، کہیں توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس کے علاوہ کوچ بہار میں، ہاوڑہ میں، باراسات میں، مرشد آباد میں اور ساؤتھ 24 پرگنہ میں سب سے زیادہ وائلنس ہوا، تشدد ہوا۔ جے شری رام کے نعروں کے ساتھ مسجدوں کے سامنے جا کر بدتمیزی کی گئی، ہردنگ مچایا گیا، مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئی، مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی گئی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اے پی سی آر کی رپورٹ کے مطابق
4 से 7 मई के बीच में 2 मौत भी हुई है और उनमें एक मुसलमान की मौत हुई, दूसरा गैर मुस्लिम था। और मुसलमान लड़के की कोच बिहार में मौत हुई एक मस्जिद को बचाने के लिए। कोच बिहार के इलाके में भीड़ मस्जिद के सामने जाकर नारा लगाती है, मस्जिद के सामने जाकर बेहुरमती की जाती है, मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की जाती है, मस्जिद का ताला तोड़ने की पूरी साजिश रची जाती है। और इस दौरान एक मुस्लिम नौजवान अपनी मस्जिद को बचाने के लिए आगे आता है, मस्जिद को उन गुंडों से बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस मुस्लिम नौजवान को मारा जाता है, हमला किया जाता है, भीड़ के हमले का वो शिकार हो जाता है। मस्जिद बचाने की खातिर एक मुस्लिम नौजवान शहीद हो जाता है, एक और की मौत हुई। जबकि दूसरी रिपोर्ट यह है कि वेस्ट बंगाल का रिज़ल्ट आने के बाद 4 मौत हो चुकी है, जिनमें से एक मौत खुद बीजेपी के वर्कर और मौजूदा चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के पीए की हुई है, जिसका नाम था चंद्रनाथ रथ। और 3 दूसरे लोगों की मौत हुई, जिसमें कुछ टीएमसी के वर्कर बताए जा रहे हैं, कुछ आम शहरी बताए जा रहे हैं। इसी तरह नंदिया और अबूतरा का जो इलाका है वहाँ तो घरों में तोड़फोड़ की गई है, घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई है। एपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी दावा किया कि 4 मई को जैसे ही बीजेपी की जीत का ऐलान हो गया, बीजेपी के वर्करों ने पूरे इलाके में गुंडागर्दी शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दिया। और तोड़फोड़ करने के बाद मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बदतमीज़ी की गई। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका गया, बुर्का का मजाक उड़ाया गया, हिजाब को खींचने की कोशिश की गई, हिजाब की तौहीन की गई। इस तरह के और भी कई वाक़ात लगातार सामने आए। बीजेपी के वर्करों ने वेस्ट बंगाल में जगहों का, सड़कों का, पार्कों का नाम भी बदलना शुरू कर रखा है। जैसे सनाउल्ला मंचा एक जगह का नाम था, उसका नाम इन लोगों ने बदल दिया। मस्जिद रोड के नाम से एक जगह थी, उसका नाम बदल दिया। सिराजुद्दौला पार्क था, उसका नाम इन लोगों ने बदल दिया। इस तरह के और भी कई वाक़यात सामने आए हैं और अभी भी रिपोर्ट जारी है, क्योंकि मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। खुद मुझे वेस्ट बंगाल पुलिस ने नोटिस भेज दिया कि आपने ये वीडियो क्यों शेयर किया। इस वीडियो के शेयर करने की वजह से मैंने सरकार से सवाल पूछ दिया था, कितनी शर्म की बात है, सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, क्यों लगाया गया था इन सबको ड्यूटी पर। तो मुझे कहा जा रहा है इससे लॉ एंड ऑर्डर ख़तरे में पड़ सकता है, माहौल बिगड़ सकता है, या पुलिस पर, फोर्स पर, सुरक्षा कर्मियों पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। सवाल यह है कि जनाब, इन तमाम सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, गुंडों को रोकना, गुंडागर्दी से इलाके को पाक रखना। ये जितने लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, दुकानों को आग लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इन सब की चुन चुन कर गिरफ्तारी करना। लेकिन वेस्ट बंगाल में गुंडों की गिरफ्तारी हुई हो, जितने लोग दुकानों को तोड़ रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, इनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, इसकी कोई बाज़ाब्ता रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। जो ग्राउंड पर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जो लोकल रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनको रिपोर्ट करने से रोका जा रहा है, उनको वीडियो बनाने से रोका जा रहा है और लगातार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एपीसीआर का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन खबरों को शायद नहीं किया है, कुछ लोकल रिपोर्टर के ज़रिए ये खबरें मिली या कुछ लोकल कॉन्टेक्ट की बुनियाद पर ये सारी जानकारी इकट्ठा की गई है। मिल्लत टाइम्स जैसे कुछ डिजिटल आउटलेट की बुनियाद पर ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो सकी है और फिर ये डेटा सामने आया है। मुकम्मल डेटा नहीं है, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि पूरे बंगाल को इन लोगों ने जलाने की कोशिश की, कानून को हाथ में ले लिया। और मैंने पिछले दिनों बताया था कि जब 2 फौज के दरमियान लड़ाई होती है और पिछले ज़माने में ऐसा होता था कि एक फ़ौज जीत जाती थी, दूसरी फ़ौज हार जाती थी। जीतने वाली फ़ौज हारने वाली फ़ौज के इलाके में, हारने वाली हुकूमत के खित्ते में लूट मार शुरू कर देती थी, दुकानों को लूटने लगती थी, घरों को लूटना शुरू कर दिया जाता था, औरतों की इज्जत पर हमला हो जाता था। ऐसा लगता था माले गनीमत है, लूट लो, और पूरे इलाका को, पूरे शहर को ताराश कर दिया जाता था, तबाह कर दिया जाता था, खंडर में तब्दील कर दिया जाता था। वेस्ट बंगाल से भी वैसा ही मंजरनामा देखने को मिला। जैसे ही दिन के 2 बजे और तकरीबन तस्वीर साफ हो गई कि वेस्ट बंगाल में अब बीजेपी जीत चुकी है, सरकार बीजेपी ही बनाएगी, ममता बनर्जी की हुकूमत नहीं रही,
भीड़ ने मुख्तलिफ इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ मस्जिदों के सामने जाकर इन लोगों ने बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया। चुन चुन कर मुसलमानों की दुकानों को आग लगाया, बुलडोज़र से तोड़ा गया। कहीं पर हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानों को लूटा गया, तोड़ा गया। टीएमसी के दफ्तरों को इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। गोश्त की दुकानों को इन लोगों ने बंद कराना शुरू कर दिया। एपीसीआर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कई जगह मुसलमानों की जो गोश्त की दुकान थी, उन गोश्त की दुकानों को बंद कर दिया गया। जहां मज़बा खाना था, वहां जाकर इन लोगों ने धमकी दी कि अब तुम लोग यहाँ पर जानवरों को ज़बह नहीं कर सकते। जो मुसलमान मवेशियों की तिजारत करते हैं, जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, और वेस्ट बंगाल में जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त बहुत ज़्यादा होती है, मवेशी का कारोबार वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा माना जाता है। तो ऐसे मुसलमान मवेशी ताजरों को धमकी दे दी गई कि अब तुम लोग मवेशियों की तिजारत नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी मॉब लिंचिंग होगी, तुम्हें मारा जाएगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या जिस तरह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, बिहार में किया जा रहा है, मवेशी की तिजारत करने वालों को लोग पकड़कर मारते हैं, पीटते हैं। अभी कल की खबर है, हरियाणा के मेवात का मामला है। एक बुज़ुर्ग मुसलमान ऊँट लेकर जा रहे थे, और ऊँट वो एक जगह से ख़रीद कर दूसरी जगह बेचने के लिए जा रहे थे। ऊँट ले जाना भी बर्दाश्त नहीं हो सका गौ रक्षकों को, और उन लोगों ने पकड़ लिया, मारा, बदतमीज़ी की, और औरतों का कपड़ा पहनाकर डांस करने पर मजबूर किया, गाना गाने पर मजबूर किया। शर्मनाक सीन है। हालांकि वो गाय लेकर नहीं जा रहे थे, ऊँट लेकर जा रहे थे। चलो मान लिया कि गाय माता का दर्जा रखती है, आपकी आस्था के मुताबिक आपको पसंद नहीं है कोई गाय की तिजारत करे, कोई गाय को ज़बह करे, कहीं पर गाय को कोई मुसलमान अपने दरवाजे पर रखे। और इसलिए मुसलमानों ने हमेशा मुतालबा किया कि आप काऊ को नेशनल एनिमल करार दो। मरकज़ी सरकार ऐसा नहीं करती है, लेकिन वो मुसलमान ऊँट लेकर जा रहा था, उसकी गाड़ी को रास्ते में दंगाइयों ने रोका, मारा, और औरत का कपड़ा पहनाकर डांस करने पर मजबूर किया। इस तरह जलील किया गया, और ऐसे गुंडों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इसी तरह की धमकी वेस्ट बंगाल में मवेशी के ताजरों को दी गई है। सवाल सारे लोग यही पूछ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और बीजेपी की हर हुकूमत ये दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को, और बीजेपी की हर सरकार यही दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम काबू में रखते हैं, हमारे यहाँ गुंडागर्दी का राज नहीं होता है, डबल इंजन की सरकार होती है, और मुकम्मल तौर पर अमन सलामती को तरजीह दी जाती है। तो फिर ये कैसी अमन सलामती है? तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है नई सरकार के बनने को, शुवेंदु अधिकारी के अपने ओहदे का हलफ लेने को, और इसके बावजूद वेस्ट बंगाल में गुंडागर्दी जारी है, वायलेंस जारी है, तशद्दुद जारी है। इसको रोका नहीं जा रहा है। आखिर क्यों? हम जैसे जर्नलिस्ट को रोका जाता है, सवाल उठाने से मना किया जाता है, धमकी दी जाती है, नोटिस इशू। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अब दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।